Hey guys, congratulations for your biggest decision to come to Canada, and if you are coming to Montreal, then this video is definitely for you. In this video, I'm going to tell you what to do before landing and what to do after landing, which documents you have required here for the immigration purposes, and how to get the SIN number, bank appointments and your SIM. Everything will cover in this video. I'm Ankur Sahu, pursuing my masters in Concordia University. Without wasting of further time, let's roll the intro. So guys, first and the foremost thing is the ArriveCAN application. You have to download the application designed by IRCC, which is available on Play Store and iPhone as well. So in this application, you have to submit your all the details of passport and your photograph as well. It required for the smooth immigration process. Like पहले क्या होता था कि आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता था, लाइक अपना डिस्क्लोजर्स देने होते थे. तो अब इन लोगों ने एक एप्लीकेशन डिज़ाइन की कि आप सब कुछ उस एप्लीकेशन में पहले से ही फीड कर दीजिए. तो जब आप यहाँ पे लैंड करेंगे तो जस्ट वेरीफाई दैट यू आर द सेम पर्सन एंड इट्स ऑल साइन. सो गाइस, द सेकंड थिंग इज द डॉक्यूमेंटेशन. व्हाट डॉक्यूमेंट यू हैव रिक्वायर्ड टू लैंड हियर? So the simple answer is your passport and letter of introduction if you are a student. So these two documents they ask, and I will tell you what the process after landing in meanwhile in this video. So guys, the third thing is to get the appointment from the bank from your home country, because when you come to Canada you have to call the bank, you have to get the appointment, and you will get the appointment after a day or after a week. So better to take the appointment before coming to Canada from your home country. So guys, these three things are very important you have to do before coming to Canada. Now we will talk what to do after coming to Canada. So guys, now suppose you come to Canada and you came out of your aircraft. Now they will say all the student will go this area for the immigration purpose. So there is a kiosk machine. You have to go there. You have to enter your passport details and some photograph as well. After that, you will get one receipt. So you have to show that as well for the immigration officer. And now they will say, please take out your letter of introduction and passport in your hand. So you just take out your things or whatever they will ask at that time. For me, they just ask for a letter of introduction. Now just go to the immigration officer in the queue. One by one everyone will go and get the study permit there. If you are coming to Montreal, you will get the SIN number from airport as well. So how to get a SIN number? When you get your baggage, collect everything you have done from the airport and you are just out to leave the airport. Before that, in the opposite direction, there is an office called Quebec Services or something like this. So the timing of the SIN number from the airport is 12 to 4 p.m. Monday to Friday. In this time you can get only the SIN from the airport. Otherwise you have to go the Service Canada after coming out of the airport, and you cannot re-enter from the exit. So guys, remember to take your SIN from airport if you coming in this time, before leaving the airport and after collecting the baggage. अगर आपको SIN नंबर एयरपोर्ट से नहीं मिला तो आपको SIN नंबर सर्विस कैनेडा से कैसे लेने, चलिए वो जानते हैं. तो सबसे पहले गूगल मैप पे आप सर्च करिए सर्विस कैनेडा. जिस भी लोकेशन में आप जाना चाहते हैं, यहाँ पे 2-3 सर्विस कैनेडा के ऑफिस हैं. आप जाइए और सुबह 8 बजे आप पहुँच जाओ वहाँ पे. 9 बजे ऑफिस खुलेगा, बट आप सुबह 8 बजे पहुँच जाओ और आप वहाँ पे लाइन में लग के अपना SIN नंबर ले सकते हैं. SIN नंबर के लिए आपको स्टडी परमिट, आपका पासपोर्ट, ये 2 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे. और आपका अगर SIM है आपके पास तो वेल एंड गुड, आप अपना नंबर भी यहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हैं. सो गाइस, अब बात करते हैं, आप एयरपोर्ट से तो बाहर आ गए, अब आप अपने फ्रेंड के यहाँ या अपने एयरबीएनबी या आपने जो भी अकोमोडेशन बुक किया वहाँ पर कैसे जाएंगे, क्या क्या वेज है. तो सबसे अच्छा जो मैंने वे यूज़ किया था वो है आपका वहाँ पे टैक्सी सर्विसेज. लाइक गेट नंबर 23 पे आपको जाना है, और जैसा दुबई में सिस्टम रहता है, आपके पीछे लाइन लगी रहेगी गाड़ियों की. जो भी गाड़ी आती है आपको सही लगती है, सो मेरा बैगेज आ जाएगा तो आप वो गाड़ी पिक कर सकते हो. उनकी प्राइजेस भी काफ़ी सही होती है. लाइक पहली बार आ रहे हो, मॉन्ट्रियल आ रहे हो, तो पहली बार वो टैक्सी लेना वर्थ है, बिकॉज आपका सामान रहेगा. आप नहीं चाहोगे बस के धक्के खाओ, बस में सामान रख के फिर आप कहीं जाओ, तो बेटर है टैक्सी लो. और टैक्सी सर्विस भी इतने सिंपल है, जस्ट आपको उनको एड्रेस बता देना है. और पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे क्रेडिट कार्ड आपका यूज़ होगा उस एप्लीकेशन में, तो बेटर है कैश या क्रेडिट कार्ड, ये 2 ही चीज़ें आप उस मोड से पे करें. सो ये आप आ गए एयरपोर्ट से अपने दोस्त के घर या अपने शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन में. गेट नंबर 23 याद रखना. एयरपोर्ट से निकलने के बाद आपको गेट नंबर 23 पे जाना है. यहाँ पे बस सर्विस भी चलती है, इसका नंबर है 747
यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। ये एयरपोर्ट से पिक करती है ल्यूनल ग्रूव और अपना बैरी यूकैम, ये 2 स्टेशन हैं, ल्यूनल ग्रूव और बैरी यूकैम, जो कि यहाँ पे जाती है डायरेक्ट और बीच में कहीं नहीं रुकेगी। और सेम गो एंड थ्रू है, यहाँ से पिक करती है एयरपोर्ट पे छोड़ देगी और एयरपोर्ट से पिक करेगी तो आपको ये 2 पॉइंट्स पे छोड़ देगी। तो ये बस सर्विस चलती है, एक्सप्रेस एयरपोर्ट समथिंग कुछ बोलते हैं इसको। सो गाइस अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन बुक कैसी करनी है। तो मैंने यहाँ पे पिछली 2 वीडियोस बनाई हैं कि शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन आपको बुक कैसे करनी है और कहाँ पे करनी है। आप 2 वीडियोस देख लीजिए, आपका ये सारा डाउट खत्म हो जाएगा कि कहाँ पर कैसे रूम आपको लेना है, कैसे घर लेना है, सब चीज़ें उस वीडियो में क्लियर कर रखी हैं। कोई भी डाउट आता है तो आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दिए हैं, आप उनमें एंटर हो जाइए। मैं और मेरे कुछ दोस्त हैं वहाँ पर आपकी 24/7 हेल्प करने के लिए तैयार है। सो गाइज़ यहाँ तक आप सॉल्यूशन आपको मिल चुका है कि कैसे आपको एयरपोर्ट से घर तक आना है शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन में। इसके बाद अगर आप कंकोडिया में पढ़ते हैं और आपको मॉन्ट्रियल में ट्रैवल करना है तो यहाँ पे एक चलता है ओपस कार्ड, लाइक वो आपका बसेस और मेट्रो में एप्लीकेबल रहता है। तो यहाँ का जो भी लोकल ट्रांसपोर्ट है आप उससे ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा $40 का। सो आपका मंथली रिचार्ज रहेगा $60 और आपका 1 टाइम कार्ड जनरेशन फ़ीस रहेगी $16 के आसपास। सो गाइस मैं हूँ अभी गी कंकोडिया मेट्रो स्टेशन पे, आप देख सकते हैं कि कंकोडिया की बिल्डिंग में ही है और यहाँ से हमें जाना है लाइब्रेरी की तरफ, जो कि इस डायरेक्शन में है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये हमारे महकवीर सिंह। सो हमें इस डायरेक्शन में चलना है, चलते हैं दिखाते हैं कहाँ पे डी प्रिंट का स्टोर है। सो गाइस ये हम कॉरिडोर से निकलते हुए आ गए, यहाँ पे आपकी है हॉल बिल्डिंग इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में हमारी लाइब्रेरी। ये मैं आपको अंडरग्राउंड से दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको जब फुल टूर कंकोडिया का आएगा तब आप पूरा देख सकते हैं कि कैसे क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलती हैं। अब जो मेन चीज़ है, आपको अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड कहाँ पे मिलेगा, वो है ये डिपार्टमेंट। ये आप देख सकते हैं डी प्रिंट का स्टोर है। यहाँ पे आप फ़ोटोकॉपी, स्कैन सारी चीज़ें अपनी चीप रेट्स में करवा सकते हैं। तो ये वो जगह है, यहाँ पे आपको पहले दिन आना है और अपना आईडी कार्ड यहाँ से बनवाना है। सो गाइज़ ये है मेन एंट्रेंस हमारी लाइब्रेरी का। ये है कंकोडिया की लाइब्रेरी, आप देख सकते हैं। जो अभी मैंने आपको पाथ बताया था वो टनल के एक्सेस से मैं आया था, लाइक मेट्रो स्टेशन जो ये कंकोडिया का है वो टनल अंडरग्राउंड कनेक्टेड है। तो वहाँ से हम इस बिल्डिंग में आ गए हैं और यहाँ पे आपका डी प्रिंट स्टोर है। अगर आप इस डायरेक्शन से आते हैं तो यहाँ से सीधे वॉक करके आप जाके डी प्रिंट स्टोर पे जा सकते हैं और अपना आईडी कार्ड ले सकते हैं। सो गाइस इस डी प्रिंट स्टोर से आप ओपस कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उसमें टाइम लगता है, आपके घर पे वो कार्ड डिलीवर होगा। इसलिए बेटर है कि हम STM फोटो स्टूडियो से जाके अपना ओपस कार्ड बनवा लें, जो कि अब चलते हैं उस लोकेशन पे। सो गाइस मैं अब आ गया हूँ STM फोटो स्टूडियो। यहाँ पे आपको अपनी ओपस कार्ड बनवाना है, जो कि आपका मेट्रो और बस दोनों जगह एप्लीकेबल रहेगा। तो चलते हैं अंदर, दिखाता हूँ कैसा है अंदर। इसमें सो गाइस टाइमिंग आप देख लो, ये है। सो गाइस यहाँ पे अपॉइंटमेंट सिस्टम चलता है, बट यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट यहीं ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। कितने बजे का भी अपॉइंटमेंट हो, आप लाइन में लग के आपको तुरंत आपका कार्ड बन जाएगा। यहाँ की टाइमिंग है, आपको सुबह 11 बजे यहाँ पे आ जाना है। लाइन लगी, QR मिलेगा, आप QR स्कैन करो और आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा। कितने बजे का भी हो, जैसे ही वो आपका लाइन में नंबर आएगा आप अपना ओपस कार्ड बनवा सकते हो। और याद रहे कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके कंकोडिया पोर्टल में एक कैनेडियन एड्रेस होना चाहिए वहाँ पर, और वहाँ से ये लोग एक अटेस्टेशन लेटर डाउनलोड करेंगे जिससे वो वेरीफाई करते हैं कि आप कंकोडिया के स्टूडेंट या किसी भी कॉलेज और इंस्टीट्यूशन के यहाँ पे आप स्टूडेंट हैं। सो गाइस यहाँ पे आपको आना कैसे है, सामने आपका बैरी यूकैम से मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से चल के आपको इस जगह पे आना है। यहाँ पे फ़ोटो लगा दी है मैंने, मेट्रो स्टेशन के अंदर ही यहाँ पे डायरेक्शन दिए गए हैं कैसे आपको यहाँ पे आना है। सो गाइस अब बात करेंगे हम, सिन नंबर आपने ले लिया, आपने ओपस कार्ड ले लिया, आईडी बन गई, सब कुछ आपका हो गया। अब आप तैयार हो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करने के लिए, बेसिकली मज़दूर बनने के लिए। आई एम जोकिंग बाय द वे। सो अब आपको जॉब के लिए रिज्यूमे बनाना है। तो दोस्तों उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, मैंने ये वीडियो आपको बना रखी है। आप चाहिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए मैंने क्या चीज़ डिस्कस करी है, बिकॉज आपको रिज्यूमे के टेम्पलेट इजीली मिल जाएंगे। कभी कभी बिना रिज्यूमे की भी जॉब लग जाती है, जैसे मुझे मेरी लगी थी। मैं जैसे एक्सप्लेन की थी चीज़ें और बस उसके हिसाब से मेरी जॉब लग गई थी। इसलिए आप जो माइंडसेट मैंने डिस्कस किया वो वीडियो में समझिए। अगर आप वो समझ गए तो आप कोई भी यहाँ पे जॉब क्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो पार्ट टाइम जॉब के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो गाइस ये थी आपकी मॉन्ट्रियल तक की आने की जर्नी या कनाडा आने तक की जर्नी। अब ये डिपेंड कर सकता है, थोड़ा डिफरेंट चीज़ें हो सकती है। लाइक हमारे यहाँ क्यूबेक में ओपस कार्ड चलता है,
आप ऑन्टेरियो जा रहे हैं तो वहाँ प्रेस्टो कार्ड चलता है। तो ये चीज़ें डिफरेंट हो सकती है, बट इनिशियल आपका 1 वीक का काम जो रहेगा वो यही सब रहेगा। तो जितना जल्दी आप ख़त्म कर लें वो बेस्ट है। सो गाइस, आपने इंडिया से बैंक का अपॉइंटमेंट ले ही लिया तो बस जब भी आपकी डेट आए ईमेल आएगा, आप अपने बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन करवा लें। अगर आप CIBC से अकाउंट अपना ओपन करवाएंगे, CIBC GIC अकाउंट आप ओपन करवाएंगे तो प्लीज़ यूज़ माई रेफरल ID और आपको मिलेगा $25 इंस्टेंट कैशबैक आफ्टर डिपॉजिटिंग योर fund in a GIC account. So without wasting of further time, let's close this video and see you in the next video. Bye bye. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.